بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین ومن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم ومن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ سامعین و حاضرین ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائیں اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ یہ وصیت واجب ہے پرہیزگاروں پر، تو جو بدل دے وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کچھ بے انصافی یا گناہ کا تو اس نے ان میں صلح کرا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ پچھلے مقام کے اندر، پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قصاص کا ذکر فرمایا ہے، اور قصاص جو ہے نا وہ موت کے بعد لیا جاتا ہے، تو اب یہاں پر وصیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وصیت بھی غالباً قریب المرگ، یعنی کہ جو آدمی جس کے اوپر موت کے آثار، موت کی علامات اور موت کے اسباب کیا ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، تو وہ کیا کرتا ہے غالباً اسی وقت کیا کرتا ہے وصیت کرتا ہے موت کے وقت۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اب وصیت کے کیا ہے اسباب کو اور وصیت کے احکام کو کیا کیا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اہل عرب کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر وصیت کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کسی اجنبی شخص کے لیے جو ان کے قریبی رشتہ دار نہیں ہوتا، ان کے خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کے لیے سارے مال کو کیا کر دیتے، وہ وقف کر دیتے، وصیت کر دیتے کہ میرے مرنے کے بعد سارا یہ میرا مال اس اجنبی شخص کے لیے ہے۔ لیکن اب دین نے اور اسلام نے فرمایا کہ تم اجنبی شخص کے لیے اپنا پورے مال کو کیا کرو، ضائع نہ کرو، وقف نہ کرو، وصیت نہ کرو۔ اس کے اندر تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ کیا فخر ہے، یہ شرافت ہے، یہ شرافت اور فخر نہیں ہے، بلکہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں پر کیا کرو، خرچ کرو۔ تو اسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے لیے تم کیا کرو، وصیت کرو، قریبی رشتہ داروں کے لیے کیا کرو، وصیت کرو۔ تو اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے وصیت کے احکام ارشاد فرمائے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ مرنے کے وقت جو یعنی کہ جو آدمی قریب المرگ ہو وہ تو کیا کرتا ہے، وہ وصیت کرتا ہے۔ اب آدمی نے وصیت کی، لیکن جو اس کے ورثہ تھے ان ورثہ نے اس کی وصیت کے اندر تبدیلی کر دی، تغیر اور تبدل کر دیا، تو اس بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ وصیت کرنے والا یعنی کہ موسی جو میت تھا وہ تو کیا ہو گیا، مر گیا ہے، لیکن جنہوں نے وصیت کے اندر تغیر اور تبدل کیا تو اس کا وبال انہی کے اوپر ہوگا جنہوں نے تبدیلی کی، جنہوں نے تغیر کیا۔ اور دوسرا یہاں پر ایک اور حکم بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر موسی یعنی کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ ورثہ کے بارے کے اندر وصیت صحیح طریقے سے نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے تو وہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جہاں نہیں کی وہاں پر وصیت کرنی چاہیے تھی۔ تو اب اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو مصلح ہو یا قاضی ہو یا والی ہو یا وارث ہو یا مفتی ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ اس وصیت کے اندر اگر تغیر اور تبدل کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب ہم ان آیات کے اندر جو وصیت کے متعلق کچھ احکام ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد مال خرچ کرنا یا مرتے وقت مال خرچ کرنا یہ اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا کہ اگر کوئی بندہ تندرستگی کی حالت کے اندر اور حالت حیات کے اندر کیا کرے، زندگی کی حالت کے اندر صدقہ کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای صدقۃ افضل، کہ کون سا صدقہ کیا بہترین ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، فرمایا کہ اس حال کے اندر صدقہ کرنا بہتر اور افضل ہے کہ تم تندرست ہو اور تجھے مال کی کیا ہو ضرورت اور حاجت ہو، تو پھر کیا کرے، صدقہ کرے، تو یہ کہ افضل صدقہ ہے۔ دوسری روایت کے اندر حضور نے فرمایا لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق عند موته بمئة۔ حضور نے فرمایا کہ حالت حیات کے اندر، زندگی کی صورت کے اندر، اس وقت بندے کے پاس کیا ہو، حیات و موت نہ ہو، اس وقت ایک درہم بندہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرے، صدقہ کرے، تو وہ موت کے وقت 100 دراہم خرچ کرنے سے کیا افضل و اعلیٰ ہے۔
तीसरी रिवायत के अंदर आता है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मसलुल्लज़ी युनफिकु औ यतसद्दक़ु इंदा मौतिही मसलुल्लज़ी कमसलिल्लज़ी युहदी बाद मा यशबा। हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा मौत के वक्त सदका करता है या कोई माल खर्च करता है तो वो ऐसे है कि जिस तरह के उसने सैर होने के बाद कोई खाने का माल क्या कर दिया, सदका कर दिया या हदिया कर दिया। तो आप आसूदा होने के बाद, सैर होने के बाद हदिया करने का कोई उसको फायदा नहीं, तो ऐसे ही मौत के वक्त भी अगर वो क्या करे, सदका करे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, उसका बल्कि फायदा क्या होगा, कम होगा। क्योंकि रब तआला ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिस चीज को तुम पसंद करते हो उसको अल्लाह की राह के अंदर खर्च करो तो फिर तो तुम्हें क्या नेकी भी मिलेगी और तुम्हें क्या इसके ऊपर सवाब भी मिलेगा। अब हम वसीयत के मुतालिक आते हैं कि वसीयत के लिए याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन तरका खैरन, कि अगर बेहतरी को क्या करो, छोड़ो, तो फिर क्या है, तुम वसीयत करो। अब यहां पर इन तरका खैरन इस शर्त की वजह से उलमा ने यहां पर जिक्र किया कि माले कसीर होना चाहिए। अब अगर किसी के पास माले कसीर ना हो तो वो क्या करे, सदका वसीयत ना करे तो उसके लिए क्या बेहतर और आला और औला है। अब यहां पर माले कसीर की हद क्या है, तो इसके मुतालिक कोई तायीन नहीं है। उलमा और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो हालात के मुताबिक क्या माले कसीर हो तो वो क्या माले कसीर है, उसके अंदर उसकी क्या वसीयत करना उसके लिए बेहतर है और जायज है और मुस्तहब है। हजरत मौला कुल कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि दखल अला मौला लहू फिल मौत व लहू सबअमियातिन दिरहम औ सित्तुमियाति दिरहम। हजरत मौला अली पाक अपने एक गुलाम के पास गए और उस गुलाम के ऊपर मौत का वक्त आया हुआ था, यानी कि वो करीब मर्द था, तो उसके पास 700 दराहम थे या 600 दराहम थे। फकाल अला उसी, उस गुलाम ने अर्ज की हुजूर मैं क्या वसीयत करूंगा कि ना करूंगा। कार अला, हजरत मौला कुल कायनात फरमाया ना, तुझे वसीयत करने की कोई जरूरत कोई है। इन्ना मकालुल्लाह तआला इन तरका खैरन वलैसा लका कसीर माल फदा मा लका लिवारसतिक। हजरत मौला अली पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम खैर कसीर को छोड़ो फिर क्या है, तुम क्या करो, वसीयत करो, और तेरे पास जो माल है 600 दराहम या 700 दराहम, ये माल कसीर के अंदर नहीं आता, इसलिए ये माल अपने वारसा के लिए छोड़ दो तो ये बेहतर है। ऐसी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि अन्ना रजुलन क़ाल लहा उरीदु अन उसिया क़ालत कम मालुक। एक आदमी उसे अर्ज किया, हजरत आयशा से अर्ज किया कि या उम्मुल मुमिनीन, मैं वसीयत करना चाहता हूं। वो हजरत आयशा ने पूछा तेरे पास कितना माल है। काला सलासत आलाफ है, उसने अर्ज की मेरे पास 3000 दराहम है या 3000 दनानीर है। तो कालत कम यालुक, हजरत आयशा ने पूछा कि तेरे आल औलाद कितने, तेरी औलाद कितनी है। काला अरबात, उस शख्स ने अर्ज की कि मेरे 4 क्या हैं साहिबजादे हैं। कालत, हजरत आयशा ने फरमाया काल अल्लाह तआला इन तरका खैरन व हाज़ा शैउन यसीरुन फतरुकु लिअयालिका फहुवा अफसल। हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वसीयत वो आदमी करे कि जिसके पास खैर हो, यानी कि माल कसीर हो उसके पास, और ये जो तेरे पास माल है यानी कि 3000, ये तो क्या बहुत थोड़ा माल है, तो इसको अपने आल याल के लिए छोड़ दे तो ये क्या है, अफसल है। अब इन रिवायात की वजह से मालूम होता है और पता चलता है कि वसीयत वो आदमी करे कि जिसके पास क्या हो, माल कसीर हो। फिर वसीयत के मुतालिक ये याद रखिए कि जमाना जाहिलियत के अंदर, यानी कि इब्तिदा इस्लाम के अंदर, जिस वक्त इस्लाम अभी सही फला फूला नहीं था, तो उस वक्त ये वसीयत फर्ज थी, वाजिब थी। लेकिन जब इस्लाम फल फूल गया और इस्लाम के अंदर आयात मवारीस आई और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन आए, तो उस सूरत के अंदर ये वसीयत का जो हुक्म था वो क्या हो गया, मनसूख हो गया। अब वसीयत का जो दर्जा वो मुबाह या मुस्तहब के दर्जे के अंदर रह गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना लक़द क़स्सम लिकुल्लि इंसान नसीबहु मिनल मीरास फला तजूज़ लिवारिसिन वसीयतुन। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान के लिए मिरास से एक हिस्सा क्या कर दिया, मुकद्दर कर दिया, नसीब एक हिस्से को क्या कर दिया, मुअय्यन कर दिया, तो इसलिए किसी वारिस के लिए वसीयत करना क्या है, जायज नहीं। दूसरी रिवायत के अंदर हुजूर ने खुद फरमाया इन लक़द आता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फला वसीयत लिवारिसिन। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर हक वाले को हक अता फरमा दिया, इसलिए वारिस के लिए वसीयत करना जायज नहीं। अब इन रिवायात की वजह से मालूम होता है कि वसीयत फर्ज नहीं है, हाँ वसीयत अगर कोई बंदा करे तो ये क्या मुस्तहब या मुबाह है। और फिर यहां पर यह भी बात याद रखिए कि वसीयत तो की जाएगी, ये माल के तिहाई हिस्से, तीसरे हिस्से के अंदर की जाएगी। रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास वो फरमाते हैं आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजतुल वदा मैं वजन अशफैतु मिन्हु अलल मौत, कि मैं करीब मर्ग था तो हुजूर ने मेरी इयादत की। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज्जतुल विदा के मौके के अंदर मेरे पास तशरीफ ले आए। फक़ुल्तु या रसूलल्लाह बलगत बी मा तरा मिनल वजह,
वअना ज़ु मालिन वला यरिसुनी इल्ला बिन्तुन वाहिदतुन अफ़अतसद्दक़ु बिसुलुसि मालिन। अर्ज़ की हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये जो दर्द पहुंचा हुआ, ये मुझे जो तकलीफ है, मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी क्या है बचेगी। मेरे पास क्या माल बहुत ज्यादा है, तो क्या मेरा माल जो है मैं उसको सदका कर दूं? क्योंकि अगर मैं मर गया, मैं फोत हो गया, तो मेरे पास जो मेरा वारिस बनेगा वो सिर्फ एक ही बेटी और एक ही साहिबजादी बनेगी, तो क्या मैं माल के 2/3 से सदका कर दूं? हुजूर ने फरमाया, ला ना, 2/3 माल सदका ना करो। कुल तो अफ़अतसद्दक़ु बिशत्रिही। हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं, क्या आधा माल सदका कर दूं? क़ाल ला अस्सुलुस वस्सुलुसु कसीरुन। हुजूर ने फरमाया, ना, आधा माल भी क्या करो, अल्लाह की राह के अंदर सदका ना करो बतौर वसीयत के, बल्कि तुम 1/3 माल क्या करो, वसीयत करो, और 1/3 भी क्या है, कसीर है। इन्नका अन तज़रा वरसतक अग़निया खैरुम मिन अन तज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम अपने वरासा को अगनिया करके, बेनियाज करके छोड़ के जाओ, ना कि ये करके छोड़ के जाओ कि वो लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो, लोगों के सामने क्या मंगते बन के फिर रहे हो। इसलिए तुम 1/3 माल के अंदर क्या करो, वसीयत करो, निस्फ माल के अंदर, आधे माल के अंदर या 2/3 के अंदर सदका नसीहत करने की कोई जरूरत और हाजत नहीं। तो इस रिवायत की वजह से मालूम होता है कि 1/3 माल के अंदर वसीयत करना बेहतर है। हाँ, अगर 1/3 माल से अगर कोई बंदा वसीयत ज्यादा करता है और इस पर वारसा जायज इजाजत भी देते हैं, फिर क्या 1/3 माल से वसीयत जायद करने की क्या इजाजत है। रिवायत के अंदर आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला तजुज़ु वसीयतु लिवारिसिन अन यशा इल्ला अन यशा वारसा। फरमाया कि वारिस की वसीयत जायज नहीं, हाँ अगर वारसा क्या है वो इजाजत दे दो फिर तो क्या जायज। ऐसी दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि सरकार ने फरमाया, ला वसीयत लिवारिसिन इल्ला अन तुजीज़ल वारसा। फरमाया किसी वारिस के लिए वसीयत करना जायज नहीं, हाँ अगर वारिस क्या इसकी इजाजत दे दो फिर तो क्या जायज है। अब यहां पर ये तो दलील नकली पेश कर दी। अब दलील नकली ये है कि असल के अंदर वसीयत के लिए 1/3 माल की जरूरत इस वजह से रखी गई है कि ये वारसा का माल इसके साथ क्या होता है, मुताल्लक होता है। जब वारसा अपने हक को साकित करने के ऊपर क्या राजी है और वो इजाजत दे रहे हैं, तो फिर 1/3 माल से जायद के अंदर वसीयत करने के अंदर कोई चीज माने नहीं है, वो कर सकता है। फिर यहां पर एक मसला ये भी याद रखिए कि बड़ा अहम मसला है कि कुछ हजरात कहते हैं कि अगर कोई आदमी मर जाए तो मरने के बाद अगर उसके ऊपर क्या कर्ज हो तो उससे क्या मुआवजा लिया जाएगा कब्र के अंदर, और हशर से उससे क्या होगी, पूछ कुछ होगी। इसकी तफसील बयान करते हुए अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला ने तफसीर रूहुल मानी के अंदर जिक्र किया कि अगर जो मैयत था जिसने कर्ज लिया हुआ था वो मर गया, तो वो अगर गरीब था, मुकसिर था, उसके पास माल नहीं था, तो इस सूरत के अंदर उससे क्या कोई बाज पोछ नहीं होगी, ना क़यामत के अंदर होगी ना कब्र के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि ये तो क्या मौसर है और इसके साथ नजर शफकत करना ही क्या बेहतर है। हाँ अगर वो मैयत ऐसा था कि जो मौसर नहीं था, जो मूसिर था, उसने क्या कोई माल मरते वक्त क्या है छोड़ा था और वारसा को मालूम भी था कि इसने कर्ज किससे लिया हुआ था, तो अब जो कर्ज खा है, जो कर्ज लेने वाला है, ऐसी सूरत के अंदर वो उस वारिस से क्या करेगा, कर्ज का मुतालबा करेगा। तो अब इसके अंदर इस मैयत से जिसने माल छोड़ा था इससे भी बाज पोछ नहीं होगी, ना क़यामत को होगी ना कब्र के अंदर इसको रोक टोक होगी। क्यों? क्योंकि यह मुमकिन है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इससे पूछ कुछ करे तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या अर्ज करे कि या बारी इला, मैंने तो माल छोड़ा था, अगर तू मुझे मोहलत देता तो मैं क्या अपना कर्ज क्या उतार के आ जाता तेरी बारगाह के अंदर। तो जब ये इस तरह अर्ज कर सकता है तो इसलिए इससे बात पोछ नहीं होगी। हाँ मुतालबा उस सूरत के अंदर होगा कि जिस वक्त अगर मैयत ने हराम काम के अंदर माल खर्च करने के लिए किसी से कर्ज तलब किया था, या अल्लाह की रजामंदी के बगैर किसी अमल के अंदर, किसी काम के अंदर उसने माल को खर्च करना था, तो इसलिए उसने कर्ज तलब किया था और कर्ज अदा भी नहीं किया तो मर गया, तो ऐसी सूरत के अंदर उससे क्या होगी, बाज पुर्स भी होगी और उससे क्या पूछ कुछ भी की जाएगी। हक ताला से दुआ है कि हक ताला में सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए।